Hi, hello friends of mine, friends of Dr. Rajendra Soni Piparia, Madhya Pradesh, India. I came to this video world to talk to you, to explain about the future of this world, this planet, this ecosphere, and whatever is around us. Since many days, I wanted to talk to you, and all of you must be knowing that the climatic conditions, social conditions, political conditions, and so many negative factors are around us who are killing this world slowly as a slow poison. You might be not knowing, or you might be knowing, that so many different negative waves in society, in politics, in science, in technology, they are coming to us on earth. Many of you, many of us may not be knowing what is going to happen after 2000, 2500, sorry, 2050, and beyond that till 2100, means the end of this century. So many things may happen, and I think most of us are blind about the devastation coming to us in this future. You might be knowing about very few factors about climate change, carbon emission, global warming, war, and pollution, contamination, and so many factors in different ways, on different levels, according to your knowledge of world, knowledge of what is going around us, knowledge of whatever you pick from media, pick from newspapers, pick from Facebook, pick from Instagram, pick from Twitter. May be possible that you may be knowing or may not be knowing about the time which is coming to us very fast, very fast, very fast. And I request you to listen this video very carefully. Very carefully means what I am bothered about, not this generation. I am bothered about the coming generation, means your uh, grandsons, granddaughters, which who are going to take birth in future. They might come in 2050, they might come in 2035, they may birth in 2060, 70, 90, and 2100. I am mostly bothered about them. Why I? Why should I? Because what I am thinking, that whatever you are doing today to earn a lot of money, to have big buildings, to have big cars, to have big luxury apartments, you will have lot of big roads, big dams,
aerodromes, big roads, aerodromes, and whatever we are doing as the on the name of development, विकास। कभी आपने सोचा है कि विकास हमें क्या देने वाला है? ये पैसा, ये अंधी दौड़, ये कुछ नहीं पाने की होड़ हमें क्या देने वाली है? आज यदि आप विचारवान हैं, समझदार हैं और कुछ भविष्य के बारे में सोचते हैं तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, और ना आए फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट मी टू। मुझे भूल जाइए, मेरे शब्दों को भूल जाइए, मगर यदि आप समझदार हैं तो मेरे कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप मेरी बात सुनें, समझें, मनन करें या कुछ और। यदि आप चाहते हैं तो सुने, नहीं तो आपको लगे अरे यार ये तो बकवास हैं, बेकार का आदमी है कुछ भी बोलता रहता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो मैं कह रहा था सर, आप सबसे, मेरे दोस्तों से, मेरे रिलेटिव से, मेरे देश से, बल्कि इस देश और विदेश की दुनिया से, कि हम लोग कुछ चीज़ें आज से ही समझ जाएं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, हम लोगों ने कुछ सालों पहले कोविड से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। कोविड आया कहाँ से? इस सच्चाई को तो आप स्वीकार करेंगे ही, शायद करें या न करें। आई एम नॉट बॉदर्ड, बट यू मस्ट बी बॉदर्ड। तो कुछ आने वाला कल कुछ ऐसा होने वाला है सर, कि जो भी साइंटिफिक डिवास्टेशन होने वाला है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग से हो, कार्बन एमिशन से हो, अंधी दौड़ ऑफ मनी से हो, अंधी दौड़ ऑफ विकास से हो, अंधी दौड़ ऑफ मनी से हो, ये सारी अंधी दौड़ हम लोगों को, पूरे विश्व को, पूरी क्लाइमेट को, पूरी नदियों को, पूरे पर्वतों को, पूरी हरियाली को, आपके खुद के अस्तित्व को चुनौती दे रही। और इस चुनौती में हम लोग भी शामिल हैं। करने वाले तो हम ही हैं, करने वाले राजनीतिज्ञ हैं, युद्ध करने वाले भी राजनीतिज्ञ हैं। मैं या आप हैं, या तो हम अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, या किसी पड़ोसी से युद्ध कर रहे हैं, या समाज के किसी आदमी से युद्ध कर रहे हैं। और वो युद्ध चल रहा है पैसे के कारण। जलन, द्वेष, हिंसा, आपस में ऊंचे नीचे, गरीब अमीर होने की दौड़ है कि नहीं? और इस दौड़ का फ़ायदा किसको मिल रहा है? किसी को नहीं। खुद अपने आप में जल रहे हैं हम। तनाव है, जलन है, भाई भाई, रिश्तेदारों के बीच में, समाज में, दोस्तों के बीच में एक होड़ चल रही है। काहे की दौड़, काहे की होड़? पैसे की। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ही हूँ, है कि नहीं? ये आप महसूस कर रहे होंगे। इस तरह धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, आजकल फास्ट फूड का ज़माना है। नए बच्चे, पुराने बच्चे, नई पीढ़ी फास्ट फूड में जो जहर खा रहे हैं फैशन के नाम पर, कुछ भी खा रहे हैं, देसी विदेशी, टेस्टी अनटेस्टी, बट फैशन के नाम पर हमें लूटा जा रहा है। जबकि ये विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान साबित कर चुका है कि जो फास्ट फूड में फॉरेन केमिकल्स आ रहे हैं वो हमारे शरीर को बर्बाद ही कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी को ज़रूर सुनना चाहिए और आप लोगों को उनको बताना चाहिए। विश्व में दाल चावल को
विश्व की सर्वश्रेष्ठ डिश मानी गई है और उसके कोई ना कोई कारण होगी। तो फैशन